بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور وہ انگلش گرامر سے ریلیٹڈ ہے، پارٹس آف اسپیچ۔ ویسے تو یہ انگلش میں ہی کرنا چاہیے، لیکن اردو میں کرنے کا مقصد یہ ہے یا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کو ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کے لیے وہ آسانی ہو جائے اور وہ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ پارٹس آف اسپیچ تو بہت زیادہ ہیں، 7 اور 8، لیکن جو بیسک پارٹس آف اسپیچ ہیں جو ایک سینٹینس کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، جیسے کہ ناؤن، اسم، ورب، فعل اور ایڈورب اور ایڈجیکٹو۔ ایڈورب ورب کو سپورٹ کرتا ہے اور ایڈجیکٹو ناؤن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایڈجیکٹو اس میں صفت کہلاتا ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کوشش کروں گی کہ میں اچھا ایکسپلین کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس، اسکرین پہ آپ کے سامنے ایڈجیکٹو، ناؤن، ورب اینڈ ایڈورب ہے۔ کسی بھی سینٹینس میں آپ کے پاس ایڈجیکٹو پہلے آتا ہے، پھر ناؤن، پھر ورب اور پھر اس کے بعد اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایڈورب ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایک سینٹینس کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے آگے ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں تو یہ کیپٹل، یہ آپ کے پاس سینٹینس بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کوشچن مارک ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ اب ایڈجیکٹو کے لیے میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ وہ کیسے ہر سینٹینس میں فرسٹ ناؤن سے پہلے آتا ہے اور ورب کے بعد ایڈورب ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس پیج پر آپ کے پاس انہوں نے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے کہ گرامر از دا اسٹڈی آف دا وے وی یوز ورڈز ٹو میک سینٹینسز۔ Words can be divided into groups called parts of speech. 4 parts of speech are noun, adjective, verbs, and adverbs. Okay. اب یہاں پر جو انہوں نے سینٹینس دیا ہے، the spotted fish swam slowly. Spotted fish swam slowly. سینٹینس سٹارٹ ہوا کیپٹل لیٹر سے، اینڈ ہوا فل سٹاپ سے۔ Spotted fish، spotted یہ ایڈجیکٹو ہے جسے نیچے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ڈسکرائبز دا ناؤن۔ فش ناؤن ہے، ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ verb swam، verb is a word that describes action or doing words are called verbs. And slowly, this is an adverb. It tells more about the verb or it adds the meaning of the verb. یعنی verb یہاں تک بھی ٹھیک ہوتا، the spotted fish swam، یہاں تک بھی سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن سلولی اس کا مطلب یہ کہ verb کو سپورٹ کرنے کے لیے، ورڈ کی میننگ کو ایڈ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ ایڈورب ایڈ کیا ہے۔ اب نیچے انہوں نے اس کی کچھ مشق دی ہے۔ چوز اے ناؤن اینڈ این ایڈجیکٹو ٹو کمپلیٹ ایچ ون۔ ناؤنز دیے ہوئے اور ایڈجیکٹوز دیے ہوئے، ونگز ہے، واٹر ہے، فراگ، فیٹ، سلور، فرائٹن۔ I could see
first sentence में I could see the dash fish in the I could see the silver fish in the water. Second क्या बनाया बताया उन्होंने, the dash hopped into the pond. The fat frog hopped into the pond. Third में उन्होंने कहा है the small bird flapped its dash because it was dash. So उसमें हम क्या लिखेंगे, the small bird flapped its wings because it was frightened. Bird के लिए इन्होंने it का यूज किया सीगा, यानी इसमें हम she नहीं कह सकते, she नहीं कर सकते, he और she. he लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, she लड़कियों के लिए, और it जो है वो परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, इसलिए ये यूज होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन्होंने कॉपी दीज सेंटेंसेस, चूज अ वर्ब एंड एडवर्ब टू कंप्लीट ईच वन. वर्ब्स दिए हैं, एडवर्ब्स दिए हैं, और फर्स्ट वन उन्होंने दिया है द ड्राइवर डैश्ड his horn and shook his fist. The driver dashed his horn and shook his fist. The driver hooted his horn and shook his fist angrily. दूसरे में Megan dashed her sandwiches, dashed and drank her drink thirstily. Megan ate her sandwiches quickly and drank her drink thirstily. तीसरे में उन्होंने बताया है the waiter put the tray down dash when he dashed our drinks. The waiter put down the tray down gently when he served our drinks. पहले क्वेश्चन में नाउन और एडजेक्टिव्स का रिलेशनशिप शो कर दिया है. तो आपने देखा है कि जो एडजेक्टिव्स हैं इसमें सिफ्त है वो आपके पास पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में पहले आ रहा है, और तीसरे वाले में उन्होंने क्योंकि रीजन दिए बिकॉज के बाद उन्होंने ऐड किया है. दूसरे वाले में उन्होंने वर्ब्स एंड एडवर्ब्स को शो किया. एडवर्ब्स हम ज़्यादातर कोई भी वर्ड हो उसके एंड पे LYL लगा लें तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है. कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनको LYL के बगैर भी हम एडवर्ब कहते हैं, यानी मीनिंग ऐड कर देता है वो एडवर्ब का. जैसे फास्ट है, फास्ट कभी भी फास्टली नहीं होगा, वो आपके पास फास्ट ही रहेगा. और इसी तरह कुछ और अल्फाज भी हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और एडवर्ब के तौर पे वो पहचाने जाते हैं. जैसे एंगर का एंगरली, क्विक का क्विकली, ये एडवर्ब है. जेंटल का जेंटली. और वर्ब्स तो आपको मालूम है कि डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग एक्शंस, इट शोज द एक्शन. एक्शंस शो करते हैं, ये फेल को शो करते हैं, किसी काम के होने को शो करते हैं. इस जगह पर इन्होंने एक और आपको टेबल दिया है. उसमें फर्स्ट टेबल में है नाउन और एडजेक्टिव्स, यानी नाउन को कन्वर्ट करें अगर एडजेक्टिव्स में तो वो कैसे आएंगे. फिर वर्ब को नाउन्स में कन्वर्ट करें सेकंड टेबल में. थर्ड टेबल में एडजेक्टिव्स एंड वर्ब. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें जैसे फर्स्ट है एंगर और एंग्री इज द एडजेक्टिव. सेकंड में ब्यूटीफुल गिवन है तो ब्यूटी नाउन होगा यहाँ पर. कंफर्ट तीसरा है, उसका कंफर्टेबल होगा आपके पास एडजेक्टिव. फिर डेंजरस का नाउन क्या होगा, डेंजर. एक्सपेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, एक्सपेंसिव. फेमस का नाउन क्या होगा, फेम. नेशन का एडजेक्टिव होगा नेशनैलिटी. हिस्टोरिक का नाउन होगा आपके पास हिस्ट्री. वूलन का नाउन होगा वूल. फ्यूरी का नाउन फ्यूरी दिया हुआ है और उसका एडजेक्टिव होगा फ्यूरियस, यानी बहुत गुस्सा, शदीद गुस्से में. एक्ट, अब दूसरे टेबल पे आते हैं. एक्ट और एक्शन.
अराइव का नाउन होगा अराइवल, बिहेवियर का वर्ब होगा बिहेव, कंपेयर का नाउन होगा कंपेरेबल या कंपैरिजन, डिलीवरी का नाउन डिलीवरी दिया हुआ है और उसका वर्ब होगा डिलीवर, एनकरेज का नाउन होगा एनकरेजमेंट, एंट्रेंस का वर्ब होगा एंटर और हेट्रेड का वर्ब होगा हेट, मैरी का नाउन होगा मैरिज, प्रेस का वर्ब होगा प्रेस, प्रेशर का वर्ब होगा प्रेस। थर्ड में क्लेवर क्लेवरली एलवाई का एडिशन है। एडवर्ब में आप अगर देखें इसी तरह क्लियरली क्लियर, इसलिए एडजेक्टिव होगा, वाइड का वाइडली एडवर्ब होगा, रफली का एडजेक्टिव रफ होगा, एबल का एडवर्ब एबली होगा ABLY, बैड का होगा बैडली, केयरफुल का एडजेक्टिव केयर होगा, लकी का एडवर्ब ऐड करेंगे LYली लकीली, नॉइजली एक एडवर्ब है और एडजेक्टिव क्या होगा नॉइज, फेथफुल का एडवर्ब होगा फेथफुली LYली ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये उम्मीद करती हूँ आपको इसको समझ आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें एक तो आपके स्पेलिंग्स इम्प्रूव होते हैं और फिर आपकी वोकेबलरी भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह इसको याद कर लें, आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद इन्होंने पंक्चुएशन दी हुई है। पंक्चुएशन क्या होता है, इसमें फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह के ये सब चीज़ें मिलकर एक पंक्चुएशन बनाती हैं जिसमें हम हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड होगा फुल स्टॉप पे। अब आपने खुद से देखना है कौन सा सवालिया जुमला है, कौन सा बिल्कुल सादा जुमला है, सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चनएयर कौन से हैं इसमें, क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कहाँ पे आप और इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप खुद से करें और उसके बाद अगर बेहतर लगता है तो मुझे सेंड करें मेरे ईमेल पे। मैं इसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होगी यानी कोई गलती होगी तो मैं ठीक कर दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये लेसन आपको अच्छा लगेगा। अपने कमेंट्स से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। फिर कभी दूसरे किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।